बोर्ड विजिबल है? जी सर, विजिबल है सर। यस ठीक ठीक। Let us see how go back and selective repeat are used in TCP. Dr. Shashank has already explained to you that how the go back N is working, in which if out of order segment is received by the receiver, then it goes on rejecting the subsequent segments and cumulative acknowledgement is sent. And in selective repeat, for every segment received, the acknowledgement is sent back. That's selective repeat. So that in case a particular segment is lost, so that particular segment may be retransmitted. Now let us see in TCP implementation how the go back and selective repeat are used. As far as the RFC is concerned, for TCP, the specific RFC, as far as RFC is concerned, RFC do not say anything about whether go back and should be used or selective repeat should be used. Okay, so RFC do not say anything about that which one should be used. What we are trying to talk is in most of the implementation, the technique which is used, and this is a combination, or you can say a mix of go back and selective repeat. So something is used from go back and something is used from selective repeat. So in most of the implementations, a cumulative acknowledgement is used. Cumulative acknowledgement. And you know, cumulative acknowledgement is a feature of go back N, in which if segment number 1, segment number 2, segment number 3, right? So whenever an acknowledgement comes back to the sender, if acknowledgement is say for segment number 6, so that says that segment number 6 should be transmitted and all the segments from 1 to 5 have already reached. So this is a cumulative acknowledgement. Segment number 6 means all the segments from 1 to 5 have reached and 6 should be transmitted. So 6 should be transmitted. Okay. So that is a cumulative acknowledgement. एक से ज्यादा सेगमेंट को एक्नॉलेज कर रहा है, 2 सेगमेंट के लिए आया है तो फर्स्ट और मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट 3 आया, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेगमेंट नंबर 1 है, सेगमेंट नंबर 2 पहुंच गए हैं और तीसरा भेज दीजिए. That is cumulative acknowledgement. So cumulative acknowledgement is used in most of the implementation of TCP. Okay, and you know this is a feature of go back N. Then out of order segment.
In go back and if anything at the receiver end comes out of order, it is rejected. Go back and only in order segments are accepted. If any segment is coming out of order, it is going to be rejected, right? But in most of the implementation, what happens, out of order segments are accepted. Okay, which is a feature of selective repeat. Okay, so out of order segment accepted. But acknowledgement of an out of order segment is not sent back. So the receiver is not sending back the acknowledgement of out of order segment. Receiver is accepting the out of order segment. Out of order मतलब अगर आपका सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2 पहुंचा, सेगमेंट नंबर 3 मान लीजिए लॉस हो गया, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5 पहुंचा. So what the receiver did, it has accepted segment number 4 and segment number 5. Although segment number 3 has not been received by the receiver. So 4 and 5 are out of order segment. So out of order segment are accepted. Okay. But please remember, acknowledgement is only cumulative. So acknowledgement for 4 and 5 are not sent back. Acknowledgement will be sent only in order. जितने भी ऑर्डर में सेगमेंट आए हैं उन्हीं का एक्नॉलेजमेंट होगा. अगर आउट ऑफ ऑर्डर कोई भी सेगमेंट है तो वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे रिसीवर जब तक कि ऑर्डर में ना हो जाए सेगमेंट. ओके, सो यू कैन सी हियर जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं कॉन्क्यूमुलेटिव है और जैसे जीबीएन में भेजते हैं वैसे है. आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट आ रहा तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, हालांकि सेलेक्टिव रिपीट की तरफ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. सेलेक्टिव रिपीट में क्या है, इन आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट अगर आएगा देन ऑल्सो द एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट, क्योंकि इंडिविजुअल सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं. So even if out of order segment comes, the acknowledgement of those segments are also sent if we are using selective repeat. But in TCP implementation, I mean most of the implementation, acknowledgement is sent only in order. और एक चीज ध्यान रखिए, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट तभी मीनिंगफुल है when we are sending the acknowledgement in order. अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट भेजेंगे का एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हैं तो फिर आप क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज सकते, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, दैट मीन्स if we are sending acknowledgement say for Act 7 that says all the segments 1, 2, 3, 4, 5, 6 have reached. All the segments before 7 have reached. लेकिन आपने आउट ऑफ ऑर्डर वाले का भेज दिया 7, आपने 6 तक आ गया, सेगमेंट नंबर 7 लॉस हो गया, 8 और 9 भी आ गया, तो 8 और 9 को आपने एक्सेप्ट कर लिया. और अगर आप 8 और 9 में से किसी का भी एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तो सेंडर विल एज्यूम कि उससे पहले का सब पहुंच गया है, लेकिन 7 लॉस हो गया है. ओके, सो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर का सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे. ओके, सो
क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, इन ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। ऑर्डर में आने जब तक है सेगमेंट उन्हीं का भेजा जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर का किसी का भी नहीं भेजा है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेलेक्टिव रिपीट में एक्सेप्ट होता है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, एंड नाउ अब मसला रहता है कि रीट्रांसमिशन। तो रीट्रांसमिशन किसका है? सेलेक्टिव रिपीट। ओनली दैट सेगमेंट is retransmitted which is lost. Okay, so selected retransmission. So repeating only selected segment. तो जैसे SR में है, सेलेक्टिव रिपीट में रीट्रांसमिशन सेलेक्टेड है। गो बैक एन में क्या होता है, एक लॉस हुआ तो बाकी सब भी रीट्रांसमिट होते हैं, उसके बाद वाले सब्सिक्वेंट, ऑल द सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स आर रीट्रांसमिटेड इन गो बैक एन। और सेलेक्टिव रिपीट में क्या है कि जो लॉस होता है वही रीट्रांसमिट होता है। तो जो लॉस हो रहा है टीसीपी इंप्लीमेंटेशन में उसी को रीट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और कौन सा रीट्रांसमिट होता है? सेगमेंट विद स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर। इसको याद कर लीजिएगा, स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अनएक्ट the segment which is having smallest sequence number and it is unact, acknowledge नहीं हुआ है अभी तक, और जो सबसे छोटा सीक्वेंस नंबर वाला सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। ओके, सो दैट इज रीट्रांसमिटेड। Okay, so which segment is retransmitted? If there are 4 or 5 segments which are unacknowledged, so the one which is having smallest sequence number is retransmitted. I would be showing you through an example how all these things are happening. Okay, so the segment which is smallest sequence number and unacknowledged at the sender end. तो सेंडर किसको रिट्रांसमिट करता है कि जो अनएक्नॉलेज सेगमेंट है और सबसे कम सीक्वेंस नंबर वाला है उसको रिट्रांसमिट करता है। ठीक है, ओके। अब आप अगर इससे लिंक करें दूसरी साइड से, इसी एक्नॉलेजमेंट्स आर सेंट इन ऑर्डर। सो व्हेन a timeout is happening, the segment which is having a smallest sequence number and not receiving acknowledgement, that is lost, so it is sent back. We will see through an example how it is happening. So now you can see here a mix of GBN and selective repeat, because the retransmission is done only of a lost segment. So that is the quality of selective repeat. But acknowledgements are coming, that is cumulative acknowledgements are. Selective repeat do not use this cumulative acknowledgements.
So that is a feature of Go backend. In selective repeat, out of order segments are accepted by the receiver. Here also in TCP, out of order segments are accepted by the receiver. Okay. So that's why I'm saying it is a mix of GBN and selective repeat. Now let us take an example, and I think then the one which I am trying to explain you will be more clear. Okay. If anybody have any question, चलिए नहीं तो फिर see the example. Suppose we have the sender and receiver. Segment number 1, segment number 2, both are received there. Segment number 3 lost. 4 reached at the receiver and 5 reached at the receiver. So you can see here 4 and 5 are out of order segments. 3 lost, 1 and 2 reached. So 1 and 2 are in order. Okay. Before I explain this, one more thing. Let us see how the timer is, because when a segment is lost, the retransmission is done. And when the retransmission is done, when a timeout takes place at the sender. Okay. Retransmission is done in one more event. We'll be seeing that event later on. Actually, the retransmission is done when the timeout takes place for a particular segment. If at the sender end the timeout takes place, then retransmission of that segment is done. Okay. But retransmission is done in one more case, which we say a fast retransmission. We'll be seeing that fast retransmission, whenever 3 duplicate acknowledgements are received by the sender, then also the retransmission is done. But that case we'll be taking later on. एक तो जब टाइम आउट हो गया सेंडर पे तब रिट्रांसमिशन होता है, और दूसरा केस है कि जब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए तब भी रिट्रांसमिशन होता है. इसको बोलते हैं फास्ट रिट्रांसमिशन. लेकिन फास्ट रिट्रांसमिशन को बाद को देखेंगे, फिलहाल जो टाइम आउट से रिट्रांसमिशन होता है उसको देखेंगे. हाँ, सो लेट अस फर्स्ट सी कि टाइम आउट है तो टाइमर यूज होगा एट द सेंडर एंड. वो टाइम आउट और टाइमर कैसे यूज होता है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर यहाँ पे आता हूं वापस. ओके, सो जो टाइमर है, so at the sender end टाइमर यूज होता है. एंड please remember, only one timer is used for retransmission purposes. मान लीजिए आप 10 सेगमेंट भेज रहे हैं और all those 10 segments are unacknowledged. तो ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट के लिए एक टाइमर चलाएं. एक तरीका ये भी हो सकता है, if you can think of that way कि भाई आपने 10 सेगमेंट भेजे और 10 टाइमर लगा रखे हैं, 10 टाइमर्स. फॉर एवरी सेगमेंट अ टाइमर इज.
Okay, but then it is difficult to manage the timers. So in implementation of TCP, at the sender end, for retransmission purposes, for timeout purposes, only one timer is used. अब सिंगल टाइमर यूज करते हैं. और जब सिंगल टाइमर यूज कर रहे हैं तो उसको रीसेट भी करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है. तो कैसे उसको सेट और रीसेट करते हैं? Whenever a first segment is sent, okay, so the timer is started. तो जब भी पहला सेगमेंट भेजेंगे टाइमर शुरू कर देंगे. सेकेंड, जब भी सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, एक रिसीव, तो whenever acknowledgement is received, timer is restarted. एंड थर्ड वन इज, तो देखिए, एक तो जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा सेंडर, इट विल रीस्टार्ट द टाइमर. व्हाट इट मीन? एट द सेंडर एंड, whenever it is receiving acknowledgement, this means all the segments which were waiting for the acknowledgement before that, they have been accepted, and the acknowledgement is coming for a particular segment, right? And they are, the acknowledgement is a cumulative acknowledgement, so it is accepting a bunch of maybe 2-3 segments, right? So whenever the acknowledgement is received, timer is restarted. That is second thing. And third one is whenever a timeout takes place. टाइम आउट का पीरियड कितना होता है? जनरली जो टाइम आउट है ये होता है 2 into राउंड ट्रिप टाइम. राउंड ट्रिप टाइम है सेगमेंट का जाना और एक्नॉलेजमेंट का आना. दैट इज नोन एज राउंड ट्रिप टाइम. तो जो मोटा मोटा फॉर्मूला है टाइम आउट के लिए, ये है 2 into राउंड ट्रिप टाइम. हालांकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, आजकल 2 into राउंड ट्रिप टाइम यूज नहीं करते हैं. आजकल राउंड जो यूज करते हैं वो है एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम प्लस 4 into डेविएशन इन राउंड ट्रिप टाइम. ये एक्चुअल फॉर्मूला यूज करते हैं. कैसे राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट होता है और ये कैसे आता है तो बात की बात है. फिलहाल आप अगर याद ना रहे तो इसको तो याद ही रखिए कि टाइम आउट जो है जनरली जितना भी राउंड ट्रिप टाइम है उसका डबल होता है. राउंड ट्रिप टाइम से हमेशा ज्यादा होगा टाइम आउट. नीचे वाला भी फार्मूला जो है 4 into डेविएशन इन राउंड ट्रिप टाइम जो है वो भी हमेशा राउंड ट्रिप टाइम से ज्यादा ही बताता है. ओके, 2 टाइम्स हो सकता है ना हो, थोड़ा कम हो 2 टाइम्स से बस. ओके, तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होता था 2 into राउंड ट्रिप टाइम. आजकल ये यूज होता है एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम प्लस 4 into डेविएशन इन राउंड ट्रिप टाइम. कैसे आता है वो अभी छोड़ दीजिए. ओके, सो दैट इज टाइम आउट, राइट? तो जब टाइम आउट होता है तो क्या होगा? रिट्रांसमिशन होगा सेगमेंट का विद लोएस्ट सीक्वेंस नंबर सेगमेंट. सीक्वेंस नंबर एक काम तो ये होगा. और क्या होगा? रीस्टार्ट टाइमर. तो टाइमर जब भी आपका टाइम आउट होगा तो सेगमेंट को रीसेंड करेंगे, और जब भी रीसेंड करेंगे सेगमेंट को, टाइमर को रीस्टार्ट कर देंगे. देखिए एक्नॉलेजमेंट
अभी भी नहीं आया है। इसके लिए आपने रीट्रांसमिट कर दिया एक सेगमेंट, जो सेगमेंट रीट्रांसमिट किया है उसका एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया, तो टाइम आउट लगाना पड़ेगा ना वहां पर। सो दैट इज फॉर रीस्टार्टिंग द टाइमर। और जब आप टाइमर को रीस्टार्ट करेंगे एट दैट टाइम यू नीड टू सेट कि कितना टाइम आउट पीरियड सेट करें। ओके, सो नाउ द टाइम आउट वैल्यू that will be 2 times of previous timeout। जो भी पिछला टाइम आउट था, जब टाइम आउट होने के बाद ही रिट्रांसमिशन किया है, तो वो जो भी वैल्यू थी उससे डबल रखेंगे टाइम आउट की वैल्यू। ओके, डबल इसलिए रखा है कि भाई पिछला सेगमेंट लॉस हुआ, इसीलिए रिट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। सेगमेंट वाज लॉस्ट, दैट इज व्हाई रिट्रांसमिशन इज डन। और रिट्रांसमिशन कब हो रहा है? टाइम आउट होने के बाद। तो जब आप रिट्रांसमिशन कर रहे हैं तो अब की बार आपने टाइम आउट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि ये उम्मीद है, ये एंटिसिपेशन है कि भाई रिट्रांसमिट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो पहुंचा नहीं, कहीं लॉस हो गया। तो अब की बार टाइम आउट बढ़ा दिया कि थोड़ा देर तक भी देखेंगे कि ऐसा ना हो कि कहीं फिर से डिले हो जाए या कहीं रास्ते में। ओके, सो 3 इवेंट्स हैं जब टाइमर को स्टार्ट करते हैं, रीसेट करते हैं। 1, पहला सेगमेंट भेजा आपने, तब तो स्टार्ट करना ही है टाइमर को। सेकंड, जब भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे तो टाइमर को रीस्टार्ट करेंगे। और टाइमर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद जो रीस्टार्ट किया जाता है वो नॉर्मल टाइम आउट होता है। ओके, बट थर्ड इवेंट है कि व्हेनेवर वी विल बी अ टाइम आउट टेक्स प्लेस, सो विल बी sending the retransmitting the segment and restarting the timer। और रीस्टार्ट जब टाइमर को इस बार करेंगे, जब भी आप रिट्रांसमिशन करेंगे सेगमेंट का, तो जब टाइमर को सेट करेंगे उसकी वैल्यू प्रीवियस वाले की डबल होगी। ओके, और यहां पर एक चीज और बताना होता है हमेशा कि दिस वैल्यू ऑफ टाइम आउट, ये वाली जो रिट्रांसमिशन का जो सेगमेंट है, इसको जब भी आप राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड आरटीटी कभी सेट नहीं किया जाता। राउंड ट्रिप टाइम रिट्रांसमिटेड सेगमेंट के लिए कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। If we are retransmitting a segment, then in calculation of RTT, that round trip time is not included। Okay, राउंड ट्रिप टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो वहां पे हम देखेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि सेगमेंट को रिट्रांसमिट कर रहे हैं तो राउंड ट्रिप टाइम के कैलकुलेशन में रिट्रांसमिटेड सेगमेंट का से रिलेटेड राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता। ओके, प्लीज रिमेंबर, राउंड ट्रिप टाइम एक अलग चीज है और टाइम आउट एक अलग चीज है। टाइम आउट के लिए आप टाइमर सेट कर रहे हैं एट द सेंडर एंड, और राउंड ट्रिप टाइम है कि आपने सेगमेंट को भेजा, द रिसीवर सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट, सो द टाइम गैप in receiving the acknowledgement by the sender, okay, after sending the segment and receiving the acknowledgement, that time gap is known as round trip time। और टाइम आउट क्या है? टाइम आउट इज कि भाई कितनी देर वेट करें इससे पहले कि रिट्रांसमिशन करें किसी सेगमेंट का, दैट इज टाइम आउट। और टाइम आउट हमेशा उसमें सेंडर ही इन्वॉल्व रहता है, रिसीवर इन्वॉल्व नहीं रहता टाइम आउट में, जबकि आरटीटी में रिसीवर भी इन्वॉल्व है। जब उसके पास पहुंचेगा सेगमेंट तब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो दोनों इन्वॉल्व हैं राउंड ट्रिप टाइम में। टाइम आउट केवल सेंडर पे होता है। सो दिस वाज अबाउट टाइम आउट। अब चलते हैं जो एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ किसी को कुछ पूछना हो तो बताए। Sir, I have a small question. हाँ बताओ। Sir, whenever we have time out,
So the segment with the lowest sequence number unacknowledged, that will be transmitted. So starting from that segment, all the subsequent segments would be retransmitted, right? No, all the subsequent segments will not be retransmitted because those segments with higher sequence number, they may not be lost. So if they have not been lost, then there is no need of retransmission of all the subsequent segments. Only those segments which are lost, whether the first one is smaller sequence number, उसके बाद भी कोई अगर segment loss होता है, okay, so that segment will be retransmitted later on, not with this one. We'll be seeing shortly how that is done. अच्छा, अभी मैं वो एग्जाम्पल में वो क्लियर हो जाएगा. हाँ, ठीक है सर. दो सब्सिक्वेंट सारे के सारे नहीं रिट्रांसमिट होंगे. अगर सब्सिक्वेंट में कोई पर्टिकुलर लॉस हो गया है तब फिर वो रिट्रांसमिट होगा, बट इसके साथ नहीं, बाद में होगा. देखते हैं अभी उसको कैसे होगा. ठीक है सर, ठीक. एग्जाम्पल में वो गो बैक एन में है कि सारे सब्सिक्वेंट रिट्रांसमिट होंगे, क्योंकि गो बैक एन में उधर स्टोर नहीं करते हैं, रिसीवर पे है. तो गो बैक एन में सारे रिट्रांसमिट होंगे. अभी आते हैं जो अभी यहाँ एग्जाम्पल पे आओ तब ज्यादा समझ में आएगा. और फिर बाद में पूछना उस क्वेश्चन को अगर नहीं फिर भी क्लियर हो तो. 1 and 2 अभी हमने पहले लिया है कि एक ही सेगमेंट. Let us first, in this example, we have taken only one segment loss. इसके बाद दो segment loss का example लूंगा. First, just see loss one segment. और यहाँ segment number 3 loss हुआ. Okay. Now let us see how it is behaving. When we have transmitted first segment, so the timer, let us take T as the timer. Okay. T as the timer. So timer started. Okay. So timer started when for segment number 1. When segment number 1 transmitted, timer started. एक ही टाइमर है, 2 या 3 टाइमर नहीं है सेंडर के पास, तो उसने उसको चला दिया. 1 भेजा, फिर सेकंड भेजा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सेगमेंट भेजे. 3 लॉस हो गया. ओके. नाउ सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. रिसीवर पे 1 और 2 पहुंच गया. 1 पहुंचा, 2 पहुंचा, और 4 and 5 also reached at the receiver. लेकिन 4 और 5 जो है ये आउट ऑफ ऑर्डर है. सो एक्नॉलेजमेंट कहां तक जाएगा? एक्नॉलेजमेंट केवल 1 और 2 तक ही जाएगा. ओके. सो जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वापस, दैट विल बी एक्ट 3. यही था ना कि वी ऑलवेज सेंड एक्नॉलेजमेंट, एक बढ़ा के भेजते हैं. दैट सेज कि सेगमेंट टिल 2 हैज रीच्ड. 1 और 2 वो रीच हो गए और 3 भेजिए. 4 और 5 पहुंचा, आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा. ओके. सो एक्नॉलेजमेंट फॉर 3 केम बैक. नाउ व्हाट, सी व्हाट वी आर डूइंग हियर. Act 3 receive, right? So now जब Act 3 रिसीव हुआ तो क्या करेंगे? टाइमर को रीस्टार्ट करेंगे. टाइमर ठीक है ना.
एक 3 रिसीव हुआ तो टाइमर को रीस्टार्ट किया, तो नाउ देखिए 3, 4 एंड 5 दे आर अनएक्नॉलेज्ड, और टाइमर रीस्टार्ट किया तो यहाँ रीस्टार्ट हो गया टाइमर। समझ में आ रहा है? 1 और 2 विंडो स्लाइड हो गई आगे, 1 और 2 तो एक्नॉलेज हो गए। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा? What will happen? Because 3 has been lost, so obviously we are not going to get the acknowledgement for 3. 4 और 5 है यहाँ पे, fine, at the receiver end 4 and 5 are there at the receiver end, but receiver is not going to send the acknowledgement. ठीक है ना? So 3, 4, 5. So now what will happen? Timer will expire. Timer क्या होगा? एक्सपायर करेगा। करेगा कि नहीं? जो ये टी लगाया था यहाँ पर, that T will expire, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आ नहीं रहा 3 का, तो टाइमर विल एक्सपायर, टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है ना? टाइमर एक्सपायर का मतलब है टाइम आउट, टाइम आउट हो गया। Now after time out, what is to be done? See at this point, only 3, the segment with the lowest sequence number and unacknowledged segment. So 3 is unacknowledged, 1 और 2 का acknowledgement आ गया, so 3 is unacknowledged and with lowest sequence number, right? 4 भी unacknowledged है, 5 भी unacknowledged है, लेकिन lowest sequence number 3 का है। So now what will happen? We'll retransmit 3 segment with lowest sequence number, that will be retransmitted. और जब भी देखिए, एक तो जब एक्नॉलेजमेंट आया था तब हमने टाइमर को रीसेट किया था, और अब ये रिट्रांसमिशन हो रहा है टाइम आउट के बाद। तो जब भी रिट्रांसमिशन करेंगे, क्या करेंगे? टाइमर को रीसेट करेंगे। ओके, रीसेट टाइमर, और ये कितनी वैल्यू होगी इसकी? अब की बार जब टाइमर को रीसेट करेंगे तो 2 into जो भी आपका प्रीवियस टाइमर की वैल्यू थी, प्रीवियस टाइमर वैल्यू। ओके, तो टाइमर एक्सपायर किया, फिर से टाइमर इसको 3 को रीट्रांसमिट किया और टाइमर को फिर रीसेट कर दिया, लेकिन अब की बार जो टाइमर को रीसेट किया वैल्यू डबल कर दी। और ये वैल्यू डबल इसलिए करते हैं इन एंटीसिपेशन की, हो सकता है देर लगे पहुंचने में, क्योंकि पिछली बार नहीं पहुंचा था, इसलिए हो सकता है कुछ कंजेशन हो, तो इसी वजह से इसको डबल करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? 4 था यहाँ, 5 था, एंड नाउ 3 विल कम। 3 रिसीव हुआ at the receiver's end, retransmission के बाद 3 रिसीव हुआ। now what receiver will do? see 4, 5 ऑलरेडी है, 3 आ गया, तो अब इन ऑर्डर हो गया, so now it will send the acknowledgement 6. after receiving 3, receivers will send back the acknowledgement 6. ठीक है ना? और जब आपने एक्नॉलेजमेंट 6 रिसीव किया तो क्या करेंगे? टाइमर को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, टाइमर रीस्टार्ट। और अब की बार जब टाइम आउट की वैल्यू नॉर्मल वाली रहेगी, पिछली वाली जो डबल थी वो नहीं रहेगी।
जब आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते हैं और टाइमर को रीसेट करते हैं तो वैल्यू जो नॉर्मल टाइम आउट की वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है, आरटीटी से ज्यादा होती है, आरटीटी से डबल मान लीजिए फिलहाल, तो डबल है, इतनी है, ठीक है। तो X6 रिसीव, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, दो वाला अभी देखते हैं, वहां पे वो क्लियर होगा कि दूसरा भी लॉस हो गया तब क्या होगा। यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू कैन सी कि एक ही रीट्रांसमिट कर रहे हैं, 5 और 4 and 5 आर नॉट रीट्रांसमिटेड बिकॉज 4 and 5 आर ऑलरेडी देयर एट द रिसीवर, आउट ऑफ ऑर्डर रिसीवर ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। सो द मोमेंट इट विल रिसीव 3 देन इट कैन सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट 6, और एक्नॉलेजमेंट 6 जब आएगा तो टाइमर को फिर से रीसेट कर देंगे। तो अगर ये क्लियर हो गया तो दो वाले लॉस वाला आप देखें, फिर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो अगला देखते हैं कि हाउ केस 2 देखते हैं कि लॉस ऑफ 2 सेगमेंट्स, लॉस ऑफ 2 सेगमेंट्स, सपोज करिए 3 भी लॉस होता है और 5 भी लॉस होता है, राइट। These 2 segments are lost. So what is the situation? The situation is something like this. Sender, receiver. Receiver has received 1, 2, 3 lost, 3 is lost, 4 reached here, and 4 is out of order, obviously, and after that 5 is also lost. Okay, so now in this case 4 received but not act, 4 का एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर है। तो एक्नॉलेजमेंट किसका जाएगा, 3 का, एक्ट 3 वेलकम। और जब एक्ट 3 आएगा तो क्या होगा, टाइमर को रीसेट करेंगे। तो यहाँ 3 था और टाइमर को आपने 3 पर रीसेट कर दिया। जब एक्नॉलेजमेंट आया तो टाइमर को रीसेट कर दिया। शुरू में टाइमर कहाँ लगाया था, ऊपर, जब 1 भेजा था और 2, 1 और 2 भेजा था ना ये, तो यहाँ पे आपने टाइमर को सेट किया था शुरू में 1 पे, और व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव टाइमर इज रीसेट। ये तो पहले की तरह है। नाउ व्हाट विल हैपन, फोर ऑलरेडी देयर है। अब क्या होगा, टाइम आउट होगा, टाइमर एक्सपायर करेगा, और जब टाइमर एक्सपायर टाइम आउट होगा तब 3 रीसेट होगा। ओके, टाइमर एक्सपायर, सो नाउ 3 इज रीट्रांसमिटेड। देखिए 3 अनएक्नॉलेज्ड है, 4 भी अनएक्नॉलेज्ड है और 5 भी अनएक्नॉलेज्ड है। ओके, 1 और 2 एक्नॉलेज हो गए, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया था पहले। अब टाइमर एक्सपायर कर गया, सो व्हेन टाइमर विल एक्सपायर
then only retransmission will take place. और retransmission किसका करेंगे? lowest sequence number को 3 is retransmitted. So 3 is retransmitted. Okay. और retransmission हुआ 3 का, और जब भी आप retransmission करेंगे क्या करेंगे? टाइमर को रीसेट करेंगे. टाइमर रीसेट, वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू प्रीवियस टाइम आउट. ये हो गया. ठीक. So when receiver received what? 3, तो 4 पहले से ही है, 3 पहुंच गया. So receiver will send what? Act 5. ठीक है ना? Act 5 is saying 3 and 4 has reached. ठीक. तो जब Act 5 आएगा तो टाइमर को फिर रीसेट करेंगे. टाइमर रीसेट, है ना? जब एक्नॉलेजमेंट आता है तब भी टाइमर को रीसेट करते हैं. तो टाइमर को रीसेट किया. और देखिए 5 अभी भी एक्नॉलेज नहीं हुआ है. Act 5 का मतलब है कि 4 तक पहुंच गया है और 5 भेजिए. एक्नॉलेज नहीं हुआ अभी 5, अभी तो भेजा ही, कह रहा है भेजिए. राइट. सो नाउ व्हाट विल हैपन? आपने टाइमर रीसेट किया था, so now timer will expire. और जब टाइमर एक्सपायर करेगा तो अब लोएस्ट सीक्वेंस नंबर कौन सा है? अनएक्नॉलेज्ड 5 है. So now 5 will be retransmitted. Okay, retransmit 5. देखिए आपने 3 भी पहले भेज दिया था, 5 भी भेज दिया था, दोनों लॉस हो गए थे. तो पहले कौन सा रिट्रांसमिट हुआ? 3. When 3 retransmitted, receiver acknowledged 3 and 4 both. क्योंकि 4 उसके पास था और अब ऑर्डर में हो गया 4. So it acknowledged 3 and 4 both. When acknowledgement received, then timer is reset. टाइमर रीसेट किया और फिर जब टाइम आउट होगा, क्योंकि 5 का तो आएगा नहीं एक्नॉलेजमेंट, तो टाइम आउट होना ही है. तो व्हेन द टाइम आउट विल टेक प्लेस, 5 विल बी रिट्रांसमिटेड, क्योंकि अब 5 बचा लोएस्ट सीक्वेंस नंबर का. ओके. एंड टाइमर रीसेट होगा फिर से. और टाइमर रीसेट, अब जब भी आप रिट्रांसमिशन के टाइम टाइमर को रीसेट करेंगे तो वैल्यू जो होगी 2 इंटू प्रीवियस टाइम आउट, उसके दुगना होगा. ओके. तो अब आपने क्या किया? 5 को रिट्रांसमिट किया, और जब 5 रिट्रांसमिट हो गया तो एट द रिसीवर एंड अब रिसीवर से क्या आ जाएगा? जब 5 पहुंचेगा तो एक आ जाएगा 6. ओके. और जब X6 आया तो अब आपने एट द सेंडर एंड फिर से टाइमर को रीसेट कर दिया. टाइमर इज रीसेट. दिस इज हाउ 5 and 3. अगर एक कोई आप सोचते हैं 6 भी भेज दें, तो 6 को भी अगर आपने भेज दिया है तो 6 आउट ऑफ ऑर्डर होगा. तो जब 5 पहुंच जाएगा तब 6 एक्नॉलेज होगा, तब 6 का एक्नॉलेज आएगा तो फिर X 7 आएगा. तो दिस इज हाउ. अगर 2 लॉस होते हैं तो अब बात समझ में आया कि सब्सीक्वेंट वाला ट्रांसमिशन अगर लॉस होता है तो सब्सीक्वेंट सीक्वेंस नंबर वाले सारे रिट्रांसमिट नहीं होंगे. इन सब्सीक्वेंट सीक्वेंस नंबर ओनली दैट इज गोइंग टू बी रिट्रांसमिटेड which actually lost, because other side is receiving out of order segments. So other side is capable of telling that which actually lost. It only sending back the acknowledgement
जो पहुंच गया है और इन ऑर्डर है, बाकी का भेजेगा नहीं, तो आप एक एक करके रिट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर अभी मैंने आपको बताया कि हाउ द सेंडर इज बिहेविंग एंड हाउ वी आर सेटिंग द टाइम आउट एट द सेंडर एंड। नाउ लेट अस सी हाउ द रिसीवर इज बिहेविंग व्हेन रिसीवर इज सेंडिंग बैक एक्नॉलेजमेंट। अभी हमने मान लिया कि उसने ये पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भेज कैसे रहा है रिसीवर? क्योंकि क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है, और क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट में कितनी देर तक वेट करे, कितने एक्नॉलेजमेंट, कितने सेगमेंट्स को एक्यूमुलेट करे कि उनका एक्नॉलेजमेंट भेजे, और कैसे एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तब। तो रिसीवर कैसे बिहेव कर रहा है इसको देखते हैं जरा। एक तो ये, और दूसरा अब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की बात भी करूंगा मैं। अभी तक हमने एक्नॉलेजमेंट की बात की खाली। ओके, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट एक्ट आल्सो, क्योंकि रिसीवर डुप्लीकेट एक्ट भेजता है, एंड डुप्लीकेट एक्ट इज रिलेटेड टू द फास्ट रिट्रांसमिशन। फास्ट रिट्रांसमिशन का मतलब क्या है? द मीनिंग इज if sender can retransmit a particular segment before the timeout, that is known as fast retransmission. बात समझ में आ रही है? सेंडर का सेगमेंट लॉस हो गया, लेकिन सेंडर को पता कब लग रहा है कि सेगमेंट लॉस हो गया? जब टाइम आउट हो जाता है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट को भेजना है, रिट्रांसमिट करना है, उसको जब टाइम आउट होता है तभी मालूम चलता है। बट इफ समहाउ सेंडर कैन इन एडवांस नो कि यार ये सेगमेंट लॉस हो गया है, तो वो पहले रिट्रांसमिशन कर सकता है टाइम आउट से। इसको बोलते हैं फास्ट रिट्रांसमिशन। और फास्ट रिट्रांसमिशन कब होता है? जब रिसीवर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजता है फॉर ए पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजे रिसीवर ने, एंड ऑब्वियसली ऑल दीज 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट शुड कम बिफोर द टाइम आउट। उससे पहले अगर भेज देता है तब सेंडर उसको रिट्रांसमिट कर सकता है लॉस सेगमेंट को बिफोर द टाइम आउट। देखिए, टाइम आउट होगा तो रिट्रांसमिट करेगा ही करेगा, बट समहाउ एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिट्रांसमिट। फास्ट रिट्रांसमिट का मतलब है कि टाइम आउट से पहले रिट्रांसमिशन हो जाए, और वो होता है तब जब रिसीवर जो है इट सेंड्स 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। वो देखेंगे। तो रिसीवर कैसे बिहेव कर रहा है ये देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो कि सेंडर कैसे बिहेव कर रहा है और टाइम आउट कैसे सेट कर रहा है सेंडर, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, जैसे कि सेलेक्टिव रिपीट में होते थे, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा है। जब ऑर्डर में आ जाते हैं तभी भेजता है। तो गो बैक एंड में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। यहाँ पे भी देखिए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ही आ रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर में आ रहा है, सेगमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहे हैं, और ट्रांसमिशन दोबारा से रिट्रांसमिशन केवल उसी सेगमेंट का हो रहा है जो लॉस हुआ है। 4 पहुंच गया था, लॉस नहीं हुआ था, तो 4 का रिट्रांसमिशन नहीं हुआ, 3 और 5 का ही हुआ। Okay, so if no question, then let me tell you how the receiver is behaving now. रिसीवर कैसे बिहेव कर रहा है ये देखते हैं।
रिसीवर फर्स्ट रूल है कि रिसीवर receives in order segment and no segment waiting. अगर रिसीवर इन ऑर्डर सेगमेंट रिसीव करता है और कोई सेगमेंट वेट नहीं कर रहा है, then what it do, it delays the act. Delay act. How much? 500 millisecond oblique 200 millisecond. जो पुरानी RFC है उसमें 500 मिलीसेकंड तक वेट करता था, नई RFC है उसमें उसको 200 मिलीसेकंड कर दिया है। ओके, तो डिलेड एक्ट भेजता है। अगर इन ऑर्डर सेगमेंट रिसीव कर रहे हैं तो डिलेड एक्ट भेजता है। ओके, सेकेंड, क्या है, रिसीव किया, रिसीव इन ऑर्डर सेगमेंट and some other segment is waiting. Some segment is waiting. तो अगर कोई सेगमेंट पहले से वेट कर रहा है, then immediately send act. बात समझ में आई कि अगर इन ऑर्डर सेगमेंट रिसीव किया है, अगर पहले से कोई सेगमेंट वेट कर रहा है तो तुरंत एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, और अगर कोई सेगमेंट पहले से वेट नहीं कर रहा है तो 500 या 200 मिलीसेकंड वेट करता है और तब भेजता है। ठीक है, तो अगर इन ऑर्डर सेगमेंट हैं, अगर ये दोनों रूल आप मिला के पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि इन ऑर्डर सेगमेंट अगर आ रहे हैं तो मैक्सिमम 2 सेगमेंट के बाद एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। यही हुआ ना, देखिए आप, इन ऑर्डर है, अगर सेगमेंट वेट कर रहा है तो एक ही सेगमेंट वेट करेगा तो दूसरा आ जाएगा, और इन ऑर्डर है तो उसने तुरंत भेज दिया एक्नॉलेजमेंट, तब वेट नहीं किया फिर और आने का, तो दूसरा सेगमेंट आया तो तुरंत भेज दिया। अगर सेकंड सेगमेंट इन ऑर्डर है तो तुरंत वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता। तो मैक्सिमम 2 ही सेगमेंट का है अगर इन ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर वाले हैं तब 1 से ज्यादा सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट में आ जाते हैं। अब देखिए थर्ड, अगर आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट रिसीव किया है तो क्या करना है, सेंड डुप्लीकेट एक्ट। जैसे ही आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट रिसीव किया तो डुप्लीकेट एक्ट भेज दो। ठीक है ना, तो एक तो नॉर्मल एक्ट है और एक डुप्लीकेट एक्ट है।
तो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव करेगा तो तुरंत डुप्लीकेट एग भेजेगा। और फोर्थ रूल है रिसीव्ड सेगमेंट which fill gap। सेगमेंट रिसीव किया जिसने गैप को फिल अप कर दिया, लाइक 4 and 5 was already waiting and 3 has been received, so 3 has filled the gap। Okay, then what is to be done? Send ACK immediately। तुरंत एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिसीवर बिहेव करता है। मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो डिलेड कब भेजेगा? व्हेन सम नो इन ऑर्डर सेगमेंट इज वेटिंग, तब डिलेड एक्ट भेजेगा, वरना वो तुरंत ही एक्ट भेज देगा। और अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तब डुप्लीकेट एक्ट भेजेगा। इफ इट रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, 4 रिसीव किया आउट ऑफ ऑर्डर, 1 डुप्लीकेट एक्ट, 5 रिसीव किया फिर से डुप्लीकेट एक्ट भेजेगा। ओके, सो व्हेनेवर इट रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, इट इमीडिएटली सेंड्स एन डुप्लीकेट एक्ट। और जब भी 3 डुप्लीकेट एक्ट सेंडर को मिलेंगे तो वो रिट्रांसमिशन कर देगा, उसको फास्ट रिट्रांसमिशन बोलते हैं। Now see how it is doing that। Sender, receiver, ठीक, सेगमेंट नंबर 1 तो कोई सेगमेंट वेट नहीं कर रहा, नो सेगमेंट इज वेटिंग। So what it do, 500 या 200 मिलीसेकेंड का वेट करेगा टाइमर लगा के, नो सेगमेंट इज वेटिंग, तो ये डिलेड एक्ट भेजेगा। ठीक, द मोमेंट रिसीवर रिसीव नंबर 2, एक ऑलरेडी वेट कर रहा था और 2 को रिसीव किया इसने, तो इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट भेजेगा हैग 3। ठीक है, सेंड हैग इमीडिएटली। अब इधर देखिए, अगर 3 लॉस होता है तो आउट ऑफ ऑर्डर आएगा सेगमेंट। 3 भेजा इसने और 3 लॉस हो गया। ठीक, इसके बाद 4 भेजा तो 4 एक्सेप्टेड। अब 4 क्या हुआ? आउट ऑफ ऑर्डर है। 1 और 2 आ गया था एंड 4 इज आउट ऑफ ऑर्डर। So the moment it receives 4, it sends immediately acknowledgement 3, which is a duplicate act। Duplicate act 3 फिर से भेज दिया, 4 रिसीव हुआ। Now if 5 is also received, 5 फिर इसने नेक्स्ट 4 के बाद 5 आ गया, 5 and that is also out of order। So the moment it receives 5, it again sends back an acknowledgement act 3। Okay, duplicate act 3, 2 डुप्लीकेट रिसीव हो गए। तो नाउ इफ सेगमेंट 6 इज ऑल्सो सेंड, 6 भेजा और 6 भी आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि 3 लॉस हो गया है, आउट ऑफ ऑर्डर।
तो इसने फिर से एक्ट 3 भेजा, डुप्लीकेट एक्ट. So now what happened? Sender has received 3 duplicate acts. This one, ये पहले, दूसरा डुप्लीकेट ये, और तीसरा डुप्लीकेट ये, थर्ड डुप्लीकेट. Okay, so now what sender has done, before the timeout it retransmitted 3. So what happened? 4 reached, 5 reached, 6 reached, and then 3 is retransmitted. And that 3 has filled the gap. So now immediately it sent back what? X7. 3 is filling the gap. 3 ने गैप फिल किया तो उसने X7 भेज दिया. So this is how the receiver behaves. यहाँ पे ये फास्ट रिट्रांसमिशन भी मैंने बता दिया आपको. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि फास्ट रिट्रांसमिशन का मतलब तभी है जब 3 डुप्लीकेट एक्ट जो आ रहे हैं वो विद इन टाइम आउट आ जाए. अगर टाइम आउट हो जाएगा तो ठीक है, 3 डुप्लीकेट एक्ट आ गए, बट टाइम आउट अगर उससे पहले ही हो गया तो रिट्रांसमिट तो पहले ही कर देगा. Okay, so fast transmission is useful only when the 3 duplicate acts reaches in advance of timeout. लेकिन पहले क्यों नहीं भेजते हैं, 2 के बाद क्यों नहीं भेजते हैं, 1 के बाद क्यों नहीं भेजते हैं? The reason is it is assumed that 3 has actually not lost, is delayed. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 जो है वो लॉस नहीं हुआ है, डिले हो गया है. एंड दिस इज व्हाई वी वेट कि 3 डुप्लीकेट एक्ट आए, पहले और दूसरे के बाद नहीं रिट्रांसमिट करते हैं. ये एज्यूम करके कि भाई डिलेड अगर है, अगर 3 लॉस नहीं हुआ है और 4 और 5 पहले पहुंच गए और 3 उसके बाद पहुंचा, डिलेड है. 3 भी डिले हो सकता है कभी कभी, क्योंकि पाथ कई बार अलग होता है. सो 3 कैन ऑल्सो बी डिले, एंड दिस इज व्हाई दिस द अरेंजमेंट ऑफ 3 डुप्लीकेट एक्ट हैज बीन केप्ट. ठीक है, ये स्टैटिस्टिकली है कि भाई जो 3 है वो अगर डिले है तो तुरंत, अगर वो डिलेड है तो पहुंच जाएगा, तब डुप्लीकेट एक्ट से रीसेंड करने का कोई मतलब नहीं. ओके, अगर वो भेज पहुंच गया है तो 1 के बाद या 2 के बाद, इफ डिलेड है 3 इट हैज रीच, तो वो ऑलरेडी थर्ड डुप्लीकेट एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ आफ्टर 3 डुप्लीकेट एक्ट द फास्ट retransmission is done. And when the acknowledgement is sent by the receiver, अगर इन ऑर्डर है तो 500 मिलीसेकेंड, अगर कोई भी वेट नहीं कर रहा है तो 500 से 200 या 200 मिलीसेकेंड वेट करके तब भेजेगा. और सेकेंड जब इन ऑर्डर आ रहा है तो जैसे ही इन ऑर्डर वाला आएगा तुरंत भेज देगा. इन ऑर्डर सेगमेंट अगर रिसीव होता है, या फिर ऐसा सेगमेंट रिसीव हो जो गैप को फिल अप करे, तब तुरंत भेज देगा. और अगर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट आता है तो डुप्लीकेट एक्ट भेजता रहेगा. Whenever it is receiving, एक एक्नॉलेज आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव किया तब डुप्लीकेट एक्ट, सेकंड रिसीव किया फिर डुप्लीकेट एक्ट, थर्ड रिसीव किया फिर डुप्लीकेट एक्ट, फोर्थ रिसीव किया फिर डुप्लीकेट एक्ट भेजेगा. वो डुप्लीकेट एक्ट इसलिए भेजता है कि इन एंटिसिपेशन की फास्ट रिट्रांसमिशन हो जाएगा. तो 2 मैकेनिज्म है, एक रिट्रांसमिशन हो रहा है टाइम आउट पे, वो तो होना ही है जब भी टाइम आउट हो जाएगा, और दूसरा एक और भी है कि अगर 3 डुप्लीकेट एक्ट भेजे तो फास्ट रिट्रांसमिशन हो जाएगा. तो दिस इज रिलेटेड टू रिट्रांसमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट. ओके, तो अगर किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बताएं. सर डुप्लीकेट एक आएगा तब भी टाइमर तो रीसेट होगा ना, सेंडर वाला?
डुप्लीकेट एक आएगा तो सेंटर वाला टाइमर रीसेट होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, रीसेट कर दिया। अभी रिट्रांसमिशन तो नहीं किया है, हाँ रीसेट कर दिया। चलिए ठीक। टाइम आउट का पीरियड ही थोड़ा बढ़ जाएगा बस, और क्या होगा। वो ठीक भी है, टाइम आउट का पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट कई बार डिले होके भी पहुंचता है, ट्रैफिक में फंस गया, कहीं डिले हो गया तो भी पहुंचता है। तो ठीक है, उसके लिए टाइम आउट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम विद दैट? हाँ सर, मैं तो पूछ रहा था कि रीसेट हाँ होगा या ठीक नहीं। है, हाँ रीसेट हो जाएगा। अब क्या बचा? राउंड ट्रिप टाइम। क्या फिर टाइम है तो बता देता हूँ राउंड ट्रिप टाइम भी। देखिए, जो टाइम आउट था वो मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइम आउट है टाइम आउट इज इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम। we say estimated राउंड ट्रिप टाइम, एस्टिमेशन बताते हैं क्या, प्लस 4 इंटू डेविएशन इन राउंड ट्रिप टाइम। ये जनरल आजकल यूज होता है, पहले यूज होता था टाइम आउट इज इक्वल टू 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम या एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम ये पहले यूज होता था, आजकल ये यूज। अब पहले तो राउंड ट्रिप टाइम, जैसे मैंने बोला कि सेगमेंट गया और एक्नॉलेजमेंट वापस आया, तो जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 और यहाँ तक वापस आने में T2, so this RTT is actually equal to T1 plus T2। और RTT मेजर किया जाता है हर सेगमेंट के लिए नहीं, नॉट फॉर एवरी सेगमेंट। सैंपलिंग की जाती है, कुछ कुछ सेगमेंट का राउंड ट्रिप टाइम मेजर किया जाता है। ठीक है, और जो फॉर्मूला है राउंड ट्रिप टाइम का, राउंड ट्रिप टाइम का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम इज इक्वल टू अल्फा इंटू एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। ये कैपिटल ही लिख लीजिए, इसको स्मॉल कीजिएगा। तो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम इज इक्वल टू अल्फा इंटू एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। जो भी अभी तक राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेटेड है उसको अल्फा से एक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू सैंपल राउंड ट्रिप टाइम। सैंपल राउंड ट्रिप टाइम मतलब जब भी आपने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मेजर किया राउंड ट्रिप टाइम, दैट इज सैंपल राउंड ट्रिप टाइम। और अल्फा की वैल्यू होती है 7/8। तो देखिए यहाँ 7/8 है, तो जो एस्टिमेटेड ऑलरेडी पहले से मालूम है राउंड ट्रिप टाइम, उसको 7/8 वेटेज देते हैं, और जो अभी सैंपल लिया है इसको 1/8। 1/8 ही बचा ना, 1 माइनस अल्फा करेंगे तो। ठीक, तो वेटेज ज्यादा देते हैं किसको? जो एस्टिमेटेड है उसको।
जो सैंपल लिया वो, और सैंपल प्लीज रिमेंबर जो मैंने बताया था कि किसी भी रिट्रांसमिटेड सेगमेंट के लिए सैंपल नहीं लिया जाता। और एवरी सेगमेंट सैंपल नहीं लेते हैं, सैंपल किसी किसी का लेते हैं, बट रिट्रांसमिटेड का तो नहीं है लेते। So if a segment is retransmitted, the round trip time related to that segment is not included in calculation of estimation of round trip time. Okay, so कभी भी हम सैंपल नहीं लेंगे जो रिट्रांसमिटेड सेगमेंट है उसका। ऑब्वियस रीजंस हैं इसलिए कि भाई उसमें तो देर लगेगी, उसको नहीं, उसको अवॉइड कर दें। जो सेगमेंट्स नॉर्मल चल रहे हैं और एक्नॉलेज हो रहे हैं, वो उनके लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। दैट इज ओके। अब ये डेविएशन वाला जो था, इसका फॉर्मूला, डेविएशन का मतलब है कि आप अगर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का राउंड ट्रिप टाइम है एस्टिमेटेड, और आपने सैंपल कलेक्ट किया इस तरह का। ओके, तो दिस, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन है, ये पोर्शन डेविएशन का। ये अगर एस्टिमेटेड ये वाला है लाइन बीच वाली, और ये आपका डेविएशन है। और डेविएशन वाले का फॉर्मूला इस तरह से है, डेविएशन राउंड ट्रिप टाइम इज कैलकुलेटेड एज बीटा इनटू ये जो सैंपल है उसका राउंड ट्रिप टाइम माइनस एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई किया बीटा से, प्लस 1 माइनस बीटा इनटू अभी तक जो पता है डेविएशन राउंड ट्रिप टाइम ये, और बीटा की वैल्यू पॉइंट आ गया, ये बीटा इज 0.25। ओके, सो डेविएशन मतलब ऑब्वियसली जो वेरिएशन है फ्रॉम एस्टिमेशन, दैट इज डेविएशन राउंड ट्रिप टाइम, और उसको भी कैलकुलेट करते रहते हैं। एंड देन नाउ दैट टाइम आउट में डेविएशन राउंड ट्रिप टाइम को यूज कर लेते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम आउट, और राउंड ट्रिप टाइम इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Sir, every machine which is connected over the internet will calculate its own round trip time. जो आपका TCP IP का मॉड्यूल है ना मशीन में, हाँ, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना जब TCP चलाएगा। So that means, sir, for every say for example, every machine will have a different value of RTT, ना sir? हाँ, वो डिफरेंट वैल्यू नहीं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू होगी, इसलिए सैंपल लेना पड़ता है। सैंपलिंग का मतलब ही है कि आपका वैरी करेगा राउंड ट्रिप टाइम, इसीलिए सैंपल ले लेके भाई कितना लें, आप एक फिक्स नहीं कर सकते ना उसको, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, और अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो बढ़ जाएगा, अगर ट्रैफिक कम है तो कम हो जाएगा। आपकी लाइन ठीक है तो बढ़ जाएगा, लाइन अगर लाइन खराब है तो बढ़ जाएगा, लाइन अगर ठीक है तो कम होगा। तो इट वैरीज, और इसलिए क्या करते हैं कि आप, क्योंकि आप कनेक्शन चला रहे हैं तो उसी वक्त कैलकुलेट करना पड़ता है। जो आपका TCP IP का मॉड्यूल है उसमें कैलकुलेशन होती है। तो सर ये कैलकुलेशन बार बार होगी, दिन में कई बार नहीं, जितनी बार कनेक्शन बनाओगे उतनी बार होगी, इसमें क्या बात है। ऑल राइट सर, फिक्स नहीं करते हैं उसको, है ना, क्योंकि आपको टाइम आउट लगाना है ना, इसीलिए जब टाइम आउट लगाना है तब RTT चाहिए। टाइम आउट कैसे लगाएंगे, बिना RTT के तो टाइम आउट लगा नहीं सकते।
ठीक सर, ठीक और ठीक सर, ठीक ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन जी है, इसीलिए वो सर। कैलकुलेट होता ही है, इसीलिए वो लिख दिया ही हुआ है कि डेविएशन भी निकालना है, सैंपल निकालना है। एक पहले फार्मूला डबल कर लेते थे, उसको भी चेंज कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, अगर टाइम आउट बहुत ज्यादा आप सेट कर देंगे तो टीसीपी स्लो हो जाएगा, इसलिए टाइम आउट को ऐसा रखना पड़ता है कि बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। आरटीटी से कम तो हो ही नहीं सकता जी सर। ऑब्वियस है, आरटीटी तो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि दैट, तो ये है। So this is about the TCP. As I said, in implementation, uses some techniques of go back and some techniques of selective repeat, and that how it sets the timeout, how it sends back the acknowledgement, how much time, what it do. ये जो एस्टिमेशन वाला निकालते हैं तो शुरू में तो कुछ रहता नहीं है, तो शुरू में 1 सेकेंड लेते हैं, टाइम आउट भी 1 सेकेंड लेते हैं, आरटीटी भी शुरू में 1 सेकेंड ही लेते हैं। भाई शुरू में जब आपने पहला भेजा तब आपके पास कोई टाइम आउट नहीं है, कोई आरटीटी नहीं है, तो आरटीटी का कैलकुलेशन करने के लिए भी 1 सेकेंड से शुरू करते हैं, और टाइम आउट भी शुरू में 1 सेकेंड लगाते हैं, उसके बाद फिर वो डायनेमिकली कैलकुलेट होता है। जो हमने लिखा है ना आरटीटी के फार्मूले में, एस्टिमेटेड आरटीटी अल्फा इनटू एस्टिमेटेड आरटीटी है ना, और सैंपल, लेकिन अभी आपके पास सबसे पहले के लिए तो कोई सैंपल नहीं है ना, तो क्या लेंगे, तो सबसे पहले वाले में 1 सेकेंड ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको रिकैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और किसी का भाई कोई क्वेश्चन हो तो बताए, नहीं तो आप फिनिश करें फिर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए तो फिर बात करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक।